आत्मनिर्भर भारत की क्रांति ने भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। इकोनॉमी की मजबूती होती है बिजनेस से, और बिजनेस का मतलब है रिस्क, जिसकी वजह से पहले लोग बिजनेस करने के अपने सपने को अधूरा छोड़ देते थे। इसका मेन रीजन होता था जानकारी का अभाव। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ढेरों सवाल होते हैं जिनके जवाब पहले आसानी से नहीं मिल पाते थे, पर अब प्रॉपर नॉलेज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप आपके सपने को पंख देने के लिए तैयार है। तो आपके बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग और उससे रिलेटेड हर तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग को कामयाब बनाने के लिए आपका पसंदीदा YouTube चैनल बिजनेस पाठशाला आपके लिए लेकर आ रहा है बिजनेस की पाठशाला, जहां आपको सिखाई जाएंगी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की सभी टेक्निक्स जो आपको बिजनेस प्लान को सफल बनाए रखने में निश्चित तौर पर मदद करेगी। यह आपके लिए अवेलेबल होगा एवरी मंथ 2nd and 4th मंडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस पाठशाला पर। साथ ही अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं जूम सेशन के माध्यम से, जिसका लिंक आपके लिए चैट बॉक्स पर अवेलेबल है। मेहनत और फोकस कभी मात नहीं देते, और जो इन दोनों की कदर करता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी एक शख्सियत की बात आज हम यहाँ करने वाले हैं, आंचल पिपलानी। 2008 में CS और 2009 में LLB करने के बाद CSAP सॉल्यूशन LLP में बतौर मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैं। आंचल जी ने न केवल इंडिया बल्कि फिलीपींस में भी भारत का नाम रोशन किया है। इन्होंने 2007 से 2008 तक यानी कि CS बनने के पूर्व जेमिनी कॉन्टिनेंटल प्राइवेट लिमिटेड में CS के तौर पर प्रैक्टिस की, जिसके बाद 2008 से 2011 में माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में एनालिस्ट से अपने स्किल को और डेवलप किया। साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की मेंबर भी हैं। SPM डायग्नोस्टिक्स की कंसल्टेंट बनकर आंचल जी ने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ग्रामा विद्याल, उत्कर्ष, माइक्रो फाइनेंस में सेवा प्रदान की है। तो आज CS आंचल पिपलानी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। Hello friends, I am Aanchal Piplani. I am a company secretary by profession, and today we are going to talk about ethical and legal issues involved in entrepreneurship. As we begin, let us first understand what this presentation is all about. There are a lot of ethical and legal issues that an organization or a business faces as it moves further. To start with, let us understand the definition of the term entrepreneurship. What is entrepreneurship? It refers to the process wherein one person who's called the owner of the business or the entrepreneur, he takes all the risks, all the liabilities to do whatever possible to make his business grow, to make his business profitable. And the person who creates this new enterprise and embraces every challenge for the same, for the development and operations of the same, is known as the entrepreneur. So, as we move further, let us understand what is actually ethical. What do we understand by ethical issues? Ethical means a set of concepts and principles that helps us determine what is good and what is not so good, what is correct and what is not so correct conceptually. In terms of business enterprise, acting ethically means working in the best interest of the business, complying with all the regulatory aspects of the business, and imbibing trust wherever and however possible. The various kind of ethical issues that entrepreneur may confront are discussed in these slides ahead. So, types of ethical issues that an organization may face are discrimination, harassment, unethical accounting, health and safety, abuse of leadership authority, nepotism and favoritism, and privacy. Given these ethical issues, as we move further, we'll discuss and we'll talk on these ethical issues in detail. Discrimination.
discrimination in an organization or a business enterprise may happen basis caste, creed, gender, religion, etc. So an organization, if has to grow, if has to reap more profits, if has to have good relationship within its organization and also with its external stakeholders, it is important that there is no discrimination amongst its people. डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत से कारणों से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए मैं प्रेफर अ मेल मेंबर रादर दैन अ फीमेल मेंबर. लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन का एक परसेप्शन हो सकता है कि अगर ये मेल मेंबर है तो ही ये सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक मेरे लिए एफिशिएंटली काम कर पाएगा. यदि फीमेल है तो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं, वो उतने प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं. सो दिस वी अंडरस्टैंड एज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर. हालांकि जरूरी है कि हम एक इंसान के क्रेडेंशियल्स को देखते हुए, उसके टैलेंट को देखते हुए, उसके मेरिट्स को देखते हुए उसको अपने साथ एसोसिएट करें, ना कि ये उसका डिस्क्रिमिनेशन करे बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन जेंडर. बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जो एक स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का ओनर, इफ ही इज अ मुस्लिम गाय, he will always prefer, he may in fact prefer कि उनके subordinates, उनके second line, उनके juniors should be from the same religion, so on and so forth for all such religions. So for an organization to grow in the most efficient manner, it is important कि हम लोग अपने within the organization, within the internal stakeholders and within the external stakeholders discrimination ना करें. नहीं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हैम्पर होता है एंड एट टाइम्स इट मे लीड टू रेप्यूटेशन, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेक्टर, इन द इंडस्ट्री. बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस एक एज के बाद अपने एम्प्लॉयज के साथ डिसएसोसिएट हो जाने की कोशिश करते हैं. उनको लगता है कि अब इनका एज हो गया है या ये एजेड हो गए हैं और हमको सर्व नहीं कर पाएंगे. हालांकि जो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं उनका एक्सपीरियंस इतना रिच होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस कंसेप्ट्स को लेके अंडरस्टैंडिंग इतना बेहतर होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने में बहुत हेल्पफुल, बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं. हेंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन द टॉप मैनेजमेंट should minimize discrimination to the bestest extent possible in the best interest of the organization. Next, ethical issue that business organizations face is harassment. Harassment in a business organization can be in many forms. It may be verbal abuse, it may be sexual harassment, it may be verbal harassment, it can be teasing, racism, bullying, and harassment may happen from an external stakeholder or it may happen internally. Harassment may have a lot of negative impact on the organization, within the organization environment. Harassment से एम्प्लॉयज पे, सबॉर्डिनेट्स पे, मैनेजर्स पे एक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, जिससे कि उनको एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार वो लोग बन सकते हैं. हरासमेंट मे हैपन from an outside stakeholder also. For example, किसी भी मैनेजर का या within the organization किसी भी स्टाफ का कोई हरासमेंट एक्सटर्नल वेंडर या सप्लायर भी कर सकता है. अगर ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस इंटरनल सबॉर्डिनेट का जो भी इमीडिएट मैनेजर है उसको रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी के गुडविल को, स्टाफ के मेंटल हेल्थ को, स्टाफ के फिजिकल हेल्थ को
और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। और यदि हरासमेंट एक लेवल से ज्यादा किसी को फेस करना पड़ता है, अ पर्सन और एन एम्प्लॉय may look forward to disassociate from an organization. He or she may not be very comfortable working in the organization in an environment where he or she is harassed by an internal और an external stakeholder. जूनियर का हरासमेंट सीनियर से हो सकता है, मैनेजर का हरासमेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स यानी कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स मतलब उनके वेंडर्स, उनके सप्लायर्स से हो सकता है। इन सभी चीजों को मिटिगेट करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो भी सीनियर है या जिसकी भी नॉलेज में हरासमेंट का कोई भी केस आता है उसको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। इनफैक्ट जो विक्टिम बन रहा है हरासमेंट का उसको अपने सीनियर को या ओनर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए दैट आई एम इन सच अ स्टेट of harassment, kindly address it as and how whatever so required in the way which is most feasible for the betterment of the organization and that individual as an employee or an internal stakeholder. As we move further, the other ethical issue that an organization faces is unethical accounting. Unethical accounting से होता क्या है कि एक्चुअल जो अकाउंटिंग डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, वो प्रेजेंट नहीं किया जाता है स्टेक होल्डर्स को, या कभी कभी क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस बहुत कॉमनली सामने आते हैं बड़ी संस्थाओं में। वो कैसे? एक बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन एक्स में एज अ फुल टाइम फाइनेंस हेड की तरह काम कर रहा है और वो हमारे कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लेता है एज एन एडवाइजर, एज अ कंसल्टेंट। सो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बड़ा कंपनी है जहाँ पे एक सीईओ है जो सारा कुछ हैंडल कर रहा है, सीईओ विच मीन्स सुपर टॉप ऑन द हायरार्की, एंड ही जॉइन्स द कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन as a consultant, as an advisor, which is a clear case of conflict of interest. Secondly, misappropriation of funds. Misappropriation of funds बहुत से रूप में हो सकता है। Misappropriation of funds implies कि हम ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का पैसा अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं कंपनी, और उसके बारे में हम या तो गलत या तो जानकारी ही नहीं दे रहे होते हैं अपने सीनियर्स को या कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, और ये केवल पर्सनल बेनिफिट के लिए ये पैसा हम यूज कर रहे होते हैं जो एक्चुअली कंपनी का या संस्था का पैसा होता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टैक्स एवेजन। व्हाट इज टैक्स एवेजन? टैक्स एवेजन इज वेयर द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड, wherein we present not very correct data, we present a little fake data to save the taxation liability of the company. Tax evasion may have negative implications if at all the government realizes through any of the medium, through any of the details and data submitted to it, that it is fake. The representation made to the government is not fair and true. And then another unethical accounting issue is window dressing. So window dressing is showing a very fancy image in terms of financials, showing a very fancy image to the internal and external stakeholders to attract investors, to show the company as much more financially stable than what it is, to reflect a positive image in front of the consumers and stakeholders and the proposed people who look forward to join the organization as an internal stakeholder or as an external stakeholder. Hence, unethical accounting, like as we understand, finances या financial data बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
उसको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जानते समझते ही उसके फाइनेंशियल डेटा से हैं। यदि अनएथिकल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल डेटा किसी को भी प्रेजेंट किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू या करेक्ट इमेज आउटसाइडर को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, और ऐसा करने से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में at one point in time regret investing in your company, regret associating with you as a stakeholder. Hence, as an ethical issue, accounting is a very important aspect. The next important aspect of ethics is health and safety. Health and safety is in lot many terms. It may be physical health, it may be mental health. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल काम करने का तरीका इतना हेल्दी है कि किसी भी स्टेक होल्डर को, उसके एम्प्लॉयज को, उसके इन्वेस्टर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को, उसके टियर 2 हायरार्की को, किसी को भी काम करने में उनके साथ कोई भी तरह का मेंटल हरासमेंट नहीं होता है, कोई भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस नहीं है, एंड दे आर कंफर्टेबल वर्किंग विद देम. फॉर एग्जाम्पल, किसी को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देना कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो दे या उसका वो मेंटली इनस्टेबल हो जाए, दैट इज नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. और उन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, उन इंडस्ट्रीज की बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितने भी सेट गाइडलाइंस हैं इन द इंडस्ट्रीज एक्ट, इन द फैक्ट्रीज एक्ट, इन टर्म्स ऑफ द पे स्केल, इन टर्म्स ऑफ number of hours of work, in terms of leaves, in terms of breaks, they should be adhered. This not only ensures the health of the people working with us, but also ensures the safety of the people working with us. Ultimately, एक business concern के लिए important क्या है? Important होता है उनका staff. एक इंसान, एक मालिक, एक entrepreneur cannot go a long way if he or she doesn't has a good team to support. और good team हमारे साथ associate तभी होती है जब हम उसके health और safety को consider करते हैं, उसके health and safety को prioritize करते हैं. बहुत से hazardous material का जो factories होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपका एक शिफ्ट केवल 4 ही घंटे का हो सकता है या एक शिफ्ट केवल 6 ही घंटे का हो सकता है. और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उन लेबरर्स को या उन स्टाफ को 8 से 10, 12 घंटे तक एक शिफ्ट में काम कराते हैं, दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल टू देयर सेफ्टी. इट इज वेरी डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल वर्किंग फॉर देम. Hence, अगर किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एसोसिएट्स के, अपने स्टाफ के, अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्थ एंड सेफ्टी पे विशेष ध्यान दें. Ensuring health and safety brings in job satisfaction, brings in belongingness to the people, which helps us remain associated with the team, with the people for a very long term. Next unethical issue जो business organization face करते हैं, which is majorly an internal unethical issue, is abuse of leadership authority. So what do we understand by abuse of leadership authority? Abuse of leadership authority का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा सीनियर है वो अपनी अथॉरिटी का या अपने डेजिग्नेशन का या अपने कैडर का मिसयूज कर रहा है. वो अपने सबऑर्डिनेट से वो सारे चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सारे काम करा रहा है जो एक्चुअली उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जो इस सीनियर को, इस इंसान को जो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है, उसको किसी न किसी रूप में कोई पर्सनल बेनिफिट दिलवा रहा है. इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है जिसको अपने हेड ऑफिस से कुछ पेटी एक्सपेंस मिलता है for the daily running of the office. For example,